ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ، جائے وقوع سے ایک اور لاش نکالی گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی، واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ تفصیل جان لیتے ہیں نمائندہ سما شاہنواز قادری سے۔ شاہنواز اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں گزشتہ روز ایم اے جناح روڈ پہ واقع جو ہے پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ اب جو ہے جائے وقوع سے ایک اور لاش نکال لی گئی ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہے اب تک یہ جو چوتھی لاش ہے جو نکالی گئی ہے، اس کے علاوہ 30 افراد جو ہے اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ بھی پریڈی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، مقدمہ سرکار مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل بالسبب، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد، آتش گیر موادے کی جو غفلت برتنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ اس گودام کا جو مالک ہے وہ حنیف ہے، اس واقعے میں زخمی ہوا ہے، وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ محمد ایوب کو بھی جو ہے اس واقعے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 25 افراد جو ہے اس واقعے میں جو زخمی ہوئے ہیں، اس کا ذکر جو ہے ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے۔ تمام افراد کو جو ہے اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے سرچنگ بھی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ شاہنواز قادری۔ چین اور پاکستان دو قالب یکجان، دونوں ممالک میں فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور ترقی کا دوست ملک حامی۔ چین کی حمایت پر صدر اور وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے سی پیک کو پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ سی پیک کے فیز 2 میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جانب سے چین کے بنیادی قومی مفادات پر مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی دہرایا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ ارکان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جلد تیانجن اور بیجنگ دورے اور ایس سی او اجلاس میں شرکت کا عندیہ دیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید کی۔ چین کے ساتھ دوستی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دیا۔ انہوں نے بیجنگ اور گانسو کے سیلاب پر چین سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور، اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ، علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی ہم آہنگی اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا سی پیک فیز 2 تجارتی تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دیں گے۔ چین اور پاکستان دو قالب یکجان، چینی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چھٹے دور کی صدارت کی۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ، علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی ہم آہنگی اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کے امن کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین کا عزم قابل تحسین ہے۔ I'm heartened by Mr. Wangi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment fields, including upgradation of CPEC Phase 2. We also discussed preparations for Prime Minister Shehbaz Sharif's forthcoming visit to China. چینی وزیر خارجہ نے کہا اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ دونوں ممالک انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کریں گے۔ The current priority for China-Pakistan cooperation is high-quality CPEC cooperation. The two sides agreed to strengthen coordination and cooperation on regional affairs, and we seek resolution to differences and disputes through dialogue and consultation. وانگ یی نے کہا کہ چین کو یقین ہے کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں کامیابی حاصل کریں گی اور پاکستان چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ وانگ یی کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات میں وسعت اور عملی شراکت داری کی نئی جہت کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف، عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے سید عاصم منیر کو مرد اہن قرار دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ملٹری
मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल, अक़वाम आलम फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालिसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार बनाती हैं। आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और ईरान से खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा, पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू दिया, न माफी की बात हुई। बयान गैर जिम्मेदाराना और एक सहाफी की जाती तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DGISPR ने सुहेल वड़ाइच के दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए गैर कानूनी हरकत पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। 9 मई की माफी तलाफी और सियासी मुसालहत के हवाले से एक कॉलम में आर्मी चीफ से मंसूब बयान झूठा और मन घड़त है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर साफी सुहेल वड़ैच के दावे की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, आर्मी चीफ की जानिब से किसी साफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ैच के कॉलम में जिस इवेंट का हवाला दिया गया वो ब्रसेल्स का एक प्रोग्राम था, जहाँ सैकड़ों अफराद ने तस्वीर बनाई। इस इवेंट में न PTI का कोई जिक्र हुआ और न ही किसी माफी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ये सब एक साफी की जाती तशहीर और मफाद हासिल करने की कोशिश है। कहा, सुहेल वड़ैच की ये हरकत गैर मुनासिब थी और जो शख्स गैर कानूनी अमल करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, इसीलिए इस पर तवातुर से हमले होते हैं। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्ट हो गया। तर्जमान पाक फौज ने नेशनल एक्शन प्लान की 14 नुकात पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा, गवर्नेंस के खिलाफ फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी करार। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का खैर मकदम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने अलीमा खान के घर पर हमले और उनके बेटे के अगवा का दावा कर दिया। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी बोले, दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाई गई। शहबाज गिल और शहजाद अकबर पेश थे। PTI के शहरियार अफरीदी ने कहा, लोग व्लॉगर बनकर अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। के मुताबिक मामला हुआ, ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी कि ज़मानत ना होती। लेकिन देखिए, जो रियासत का रद्द-ए-अमल सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। प्लेन कपड़ों में, सादा कपड़ों में लोग दाखिल हुए हैं, उन्होंने स्टाफ को मारा पीटा है। अलीमा बीबी की बहू घर पे थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, पोते पोतियों के साथ बदसलूकी हुई है और उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया है। जब आपके आर्मी चीफ, जो आपके सिपा सलार थे, जो आपकी जंग जीत के गए, जिस अमेरिका में जब वो ट्रंप को मिलने गए तो जिस गाड़ी में कैंपेन्स ऑफ फ्री बलोचिस्तान, फ्री जो पाकिस्तान का टेररिज्म के ऊपर एक्ट की बातें की जाती, एक शहजाद गिल है और दूसरा शहजाद अकबर, डिड वी नॉट सी देम इन द प्रोसेशंस जो अमेरिका में होते ना आर्मी चीफ के अगेंस्ट। कुछ लोग व्लॉगर बन के चूरन बेच रहे हैं खान का। जो भी ये काम कर रहा है गलत कर रहा है। खान ने ये कैटेगरिकली कहा है कि इनको निकालो जी। खान के मुंह से मैंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनी। जिसने 9 मई किया जी, एब्सोल्युटली उस पे तो देखे उसको इबरत का निशान। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई। 30 जख्मी इस वक्त भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। कई की हालत नाजुक है।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आबादी में गोदाम बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मोनिस अहमद की रिपोर्ट। एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, आतिशगीर मवाद फटने से जोरदार धमाका, इलाका गूंज उठा। धमाके से इमारत के सतून और दीवारें मुतासिर, सीमेंट के ब्लॉक बाहर मौजूद गाड़ियों पर जा गिरे, 20 से ज्यादा दुकानें तबाह, करीबी इमारतों, स्कूल और दुकानों के शीशे भी टूट गए। एकदम इतना बड़ा ब्लास्ट था कि मैं आपको अपने लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। और जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा तो काले बादल थे आग के, बिल्डिंगें हिल गई, शीशे टूट गए, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, काफी लोग हमने यहाँ से हाथों में डाल के हॉस्पिटल भेजा है। मुतासिरा इमारत की छत पर फंसे अफराद को स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा गया। पहले भी 2 बार 3 बार धमाके हो चुके हैं। आए देखना ये चाहिए जो यहाँ की यूनियन है या जो भी यहाँ के कंसल्ट जिम्मेदार हैं वो इस तरीके के लोगों को इजाज़त क्यों देते हैं कि वो आगे शॉप में अपने जो भी आतिशगीर मादा है उसको जमा करें, स्टॉक करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है आबादी वाले इलाके में आतिशगीर मवाद के गोदाम की इजाज़त नहीं, मुलविज़ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को स्पेयर कर दें और इस किस्म की और इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ये अभी तो इनिशियल है, हम भी पेपर वर्क देख रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। इमारत से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद हुई, जबकि 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाक़े में जख्मी होने वाले 30 अफराद जिना और ट्रॉमा सेंटर में जेरे इलाज हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम जिना रोड पर आबादी के बीचों बीच आतिशगीर मवाद जखीरा कैसे किया गया, किसने लाइसेंस जारी किया, कौन है कोताही का जिम्मेदार। मुस्तकबिल में मजीद किसी सानहे से बचने के लिए वाक़े के असल जिम्मेदारों का पता लगाना जरूरी है। एमए जिना रोड पर वाक़े इमारत में आतिशगीर मादे का गोदाम कैसे बना, आबादी के बीचों बीच मवाद कैसे जखीरा किया गया, गोदाम का लाइसेंस था भी या नहीं, अगर लाइसेंस था तो किसने और कैसे जारी किया, पटाखों के गोदाम को चलाने के लिए क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए, क्या गोदाम में तरबियत याफ्ता अमला मौजूद था। दिन भर जिस इलाके में चहल पहल होती है वहाँ आतिशगीर मवाद की मौजूदगी बड़ा खतरा, करीब ही स्कूल भी मौजूद, मगर अफसोस कि किसी को भी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल तक न आया। आतिशगीर मवाद रखने की किसी को इजाजत नहीं, मगर इतनी बड़ी मिकदार में शहर के बीचों बीच आतिशी मवाद मौजूद था, आखिर किसी को कानो कान खबर क्यों ना हुई। वजीर आला सिंध ने वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तफ्तीशी टीम जाए वक़ुआ के दौरे करेगी, तहकीकात भी होंगी, मगर अब जरूरी है असल जिम्मेदारों का पता लगाया जाए ताकि मुस्तकबिल में मजीद किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके।